Students, today we will discuss about some basic concepts of macroeconomics. These concepts are related in national income accounting and it is very important concept. Without understanding this concept, we are unable to do the numerical portion of this chapter. So let us begin for this chapter. First of all, in this chapter, in this topic, we will discuss about different types of goods. Basically, goods are classified on the two bases, that is final goods and intermediate goods. This division is mainly done on the basis of end user. So let us begin and let us understand these concepts. First, final goods. What is final goods? Goods which do not undergo any further transformation, that is change in the production process, are called final goods. मतलब वो goods जो कोई भी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन जिसका नहीं हो पाता है, इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं कि कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हो पा रहा है, यानी वो गुड्स विच क्रॉसेस द प्रोडक्शन लाइन ऑफ बाउंड्री and there is no scope of value addition, and these types of goods are called final goods. These types of goods are basically of two types. If we use a goods for consumption, direct consumption, we directly consume it, or we invest, we use the goods as a investment. For example, right now you are watching my video in your mobile, and your mobile is a final goods. Why it is a final goods? Because you are directly consuming your videos. अभी आप लोग खाना खाए होंगे, रोटी चावल ब्रेड बटर वगैरह जो भी खाए, वो भी क्या है? फाइनल गुड्स है. क्यों? क्योंकि इसको डायरेक्ट आप कंज्यूम कर लिए हैं. दूसरा तरह का जो फाइनल गुड्स हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. अगर कोई गुड्स को हम इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो उसका फाइनल गुड्स है. जैसे एक फार्मर ट्रैक्टर खरीदता है, क्यों? एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. हमारे स्कूल में ई बोर्ड्स लगे हुए हैं, वो क्या है? एक तरह का इन्वेस्टमेंट है. तो जो भी चीज़ हम इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, एक टैक्सी ड्राइवर कार खरीदता है तो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है. तो वो क्या कहलाएगा? वो फाइनल गुड्स कहलाएगा. तो इसका मतलब साफ है कि फाइनल गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर आइदर यूज्ड फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट. प्लीज नोट दैट एनी गुड्स इफ वी यूज अ गुड फॉर रीसेल or a raw material, then these types of goods are not a final goods. Okay, final goods are those types of goods which crosses the production boundary. Now we come on intermediate goods. What are intermediate goods? Intermediate goods are those goods which are used either for resale or for production process, that is, or used as a raw material, or we can say that it is used as a further production in the same year. Intermediate goods are those goods which have not crossed the production line of production. Value is still added in these goods, मतलब they are still in the production boundary, whereas final goods have crosses the production boundary and these goods are not ready for the use of final users. आपके फाइनल यूज़र के लिए ये डिपेंड नहीं करता है. जैसे जो भी रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे एक ब्रेड की फैक्ट्री में जो फ्लोर यूज़ हो रहा है, आटा यूज़ हो रहा है, ईस्ट यूज़ हो रहा है, वो उसका इंटरमीडिएट गुड्स होगा. मतलब एक ही साफ है, अगर इफ़ वी यूज़ ए गुड एज ए रॉ मटेरियल और वी कैन से दैट इट इज़ यूज एज अ फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, or we can say that it is used as a resale, then it is called intermediate goods. Now we are in position to distinguish between final goods and intermediate goods. First, final goods are used either for consumption or for investment, whereas intermediate goods are used either for resale or for raw material. They have crossed the production boundary, they are still in the production boundary. अभी हम आपको पहले बताए थे जो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर लेगा वो फाइनल गुड्स है. प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब है कि अब कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, और जो स्टिल प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है.
Third, it includes in the estimation of national income. It include in the estimation of national income. और यहाँ क्या है, it is not included in the estimation of national income. हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स कि नेशनल व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट national income, then only final goods are used and intermediate goods are left. That's why we are learning these concepts, and it is clear from in this topic also that final goods are used in the estimation of national income, whereas intermediate goods are not included in the estimation of national income. Final goods are ready for final user, whereas intermediate goods are not ready for the final users. Now I am going to give some questions to check your concept. First, machine purchased by a firm, it is a final good or it is an intermediate good. Second, book purchased by a student. बुक परचेज बाय स्टूडेंट, माने स्टूडेंट एक बुक खरीदा, क्या कंजप्शन के लिए खरीदा कि इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा? कंजप्शन के लिए खरीदा, तो ये क्या हो जाएगा, ये फाइनल गुड्स होगा. फर्टिलाइजर यूज बाय अ फार्मर, वो क्या है, एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड यूज जाएगा. फर्स्ट वन क्या, मशीन परचेज बाय अ फर्म, ये भी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है. थर्ड, रेफ्रिजरेटर परचेज बाय हाउस होल्ड, हम लोग जो रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं तो ये फाइनल यूज़ के लिए है, इसलिए ये फाइनल गुड्स है, हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं. रेफ्रिजरेटर परचेज बाय अ फर्म, इट इज़ ए intermediate goods because it is used as a raw material. Furniture purchased by a school, it is also intermediate goods because it is used as a raw material. Now there is another classification of goods. We can say that goods can be classified on the basis of two ways, that is consumption goods and capital goods. Consumption goods are those types of goods which are used for the consumption, and capital goods are those types of goods that is used for investment. Consumption goods can be classified into four ways: durable goods, semi durable goods, non durable goods, and service. Here service is also included as a good. Consumption goods are a good as a final goods, are used for the direct satisfaction of human wants. These are not used for the production of other goods and services. मतलब वो goods जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है, वो क्या है, कंजप्शन गुड्स है. जैसे जो फूड है, शर्ट, आपका मोबाइल, टीवी सेट, रेडियो, पेन, आइसक्रीम, मिल्क, ये सब कंजप्शन है, इससे कोई फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प नहीं हो रहा है. जबकि कैपिटल गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर बाउट नॉट फॉर द मीटिंग ऑफ इमीडिएट नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स. मतलब वो गुड्स जो यूज़ करता है अपना तुरंत इमीडिएट सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, बल्कि वो गुड्स का यूज़ होता है फर्दर प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए. तो कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स, आर ए फिक्स्ड एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर. दिस गुड्स आर लाइक प्लांट एंड मशीनरीज. एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, एक सीविंग मशीन इन अ टेलरिंग शॉप इज़ अ फिक्स एसेट टू अ टेलर. उसका लिए एक एसेट है सिलाई मशीन. इट इज़ अ कैपिटल गुड, बट द सेम मशीन with a consumer household is a not a capital goods, it is a consumer goods. Or we can say that it is a durable consumer goods. Okay, so it is a very important line that I have highlighted here. All capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods. Capital goods which are a fixed assets, whereas producer goods are a raw materials. Now I am going to distinguish between consumption goods and capital goods. Consumption goods means it is used for consumption goods which satisfy human wants directly, and capital goods which satisfy human wants indirectly. They do not promote production capacity, they help in the production capacity, we can say that. Now after understanding this concept, we will come a very important concept, that is investment. इन्वेस्टमेंट का मतलब कैपिटल का लगाना, कोई कैपिटल लगा रहे हैं. इन्वेस्टमेंट का मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या है, ये एक तरह का कैपिटल फॉर्मेशन है. व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का और कैपिटल फॉर्मेशन दोनों एक ही चीज़ होता है. न्यूमेरिकल में बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन में कंफ्यूज करते हैं, मगर ये दोनों एक ही चीज़ है. इट रिफर्स टू द एडिशन to the capital stock of a country. I am repeating again, investment refers to addition to capital stock
of an economy. For example, construction of a building, purchase of machineries, addition to inventories of goods are called investment. We know that capital is important factor for production. It is a stock of produced means of production. Now, increase in the capital during the year is called investment. मतलब जो स्टॉक में इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल का इंक्रीज हो, उसी को हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. और इन अ मैथमेटिकल फॉर्म वी कैन डिफाइन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेल्टा के. डेल्टा के मतलब चेंज इन कैपिटल स्टॉक्स. इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं. एक कंपोनेंट जिसको हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं और दूसरा जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या है, इट रिफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. और जबकि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, अनसोल्ड स्टॉक. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसोल्ड स्टॉक. जो भी हमारा सामान जो नहीं बिकता है उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं. तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू एट अ पॉइंट प्रोड्यूसर हैव विद देम द स्टॉक. दैट इसका तीन तरह के हो सकता है. एक जो मेरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता है जो बिका नहीं है अकाउंटिंग ईयर में. दूसरा सेमी फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता है जो पूरा तैयार नहीं है मगर वो हम बना के रखे हैं. और जो रॉ मटेरियल है ये अकाउंटिंग ईयर में जो बच जाता है उसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं. तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया. इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक को बोलते हैं. इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करें, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो बचा हुआ है आइदर इन द फॉर्म ऑफ अनसोल्ड गुड्स, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल और इन द फॉर्म ऑफ semi finished goods. Now investment can be classified into two ways, that is gross investment and net investment. Gross, net, इसका मतलब समझ लो. gross is a big concept whereas a net is a narrow concept. gross में क्या है कि gross में बहुत सारा चीज़ मिला होता है. जैसे फॉर एग्जांपल जब आप मार्केट से कोई सब्जी खरीदते हैं तो क्या होता है, ग्रॉस. 1 kg आपने मान लीजिए कॉलीफ्लावर लिया, मगर जब आप सब्जी बनाने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का आप फेंक देते हैं, बचता है नेट कम. इसी तरह आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो आप एक चिकन को खरीदते हैं, ग्रॉस 1 kg है, मगर जब वो चिकन को फ्लैश निकाला जाता है उसके तो उसके जो नेट बचते हैं वो 700 है. तो समझ में आया, ग्रॉस और नेट. हम लोग का सैलरी भी मिलता है, ग्रॉस सैलरी अलग होता है, नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन हम लोग उसको नेट बोलते हैं. तो ग्रॉस में और नेट के डिफरेंस के बीच का कड़ी क्या है, डेप्रिसिएशन. हम आपको अभी बताएंगे भी कि डेप्रिसिएशन क्या होता है. अभी आप ये जान लो कि ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट और नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस. नाउ we come on the concept of depreciation. It is also called consumption of fixed capital. Depreciation means loss of the value of fixed assets. जो भी मेरा फिक्स एसेट है उसका जो लॉस हो रहा है, उस किसके कारण लॉस हो रहा है, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट. व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि जो कि अब ऑब्सोलीट हो रहा है ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और ड्यू टू चेंज इन टाइम. जो चीज़ अब ख़राब हो गया, जैसे कि पीसीओ बूथ, अब कोई यूज़ नहीं करता पीसीओ बूथ को क्योंकि ये ऑब्सोलीट हो गया है. इस एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. नाउ a very important concept, that is stock and flow. I will discuss this concept stock and flow in another video in detail form, but in nutshell I am just try to explain in a very few minutes. Stock is a quantity measured in the particular point of time. जब भी किसी भी चीज़ को हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम अगर मेज़र करते हैं तो वो स्टॉक है. स्टॉक एक स्टैटिक कंसेप्ट है. जैसे कि 1 जनवरी 2009 में आपके पास बैंक में कितना बैलेंस है, आज के डेट में आपके पास कितना पैसा है, ये स्टॉक है. अब हर महीना आपके पास कितना पैसा आता है, ये क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा. जैसे कि आपके अगर पानी में जो हम लोग का टंकी होता है जो घर के ऊपर लगे होते हैं वो स्टॉक है, और जो नल से पानी निकलता है वो क्या है, फ्लो है, जो चलते रहता है. तो फ्लो क्या है, फ्लो इज़ अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम.
एक ही डिफरेंस याद रखना है, स्टॉक हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र करता है, जबकि फ्लो क्या होता है, ये हमेशा एक पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र करता है। इस पे हम अभी एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे स्टॉक फ्लो पे, उस पर हम डिटेल्स रूप में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।